अच्छा, वो कहता है जी पहले आप क्या करें, अकाउंट बना लें। अकाउंट बना लिया आप लोगों ने? ज्वाइन। हाँ, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ये ज्वाइन का है ना? ऑप्शनल 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 ऑप्शनल। ठीक है। कंफर्मेशन लिंक। योर ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। ठीक है। इसको रिफ्रेश कर दें फिर शायद आ गया। चलिए नेक्स्ट सेक्शन, बिहाइंड द पाइपलाइन। पाइपलाइन, ये फिर रशियन आ गया है। What happens inside the pipeline function? In this video, we'll look at what actually happens when we use the pipeline function of the transformers library. More specifically, we will look at the sentiment analysis pipeline and how it went from the two following sentences to the positive and negative labels with the respective scores. As we have seen in the pipeline video, there are three stages in the pipeline. First, we convert the raw text to numbers the model can make sense of using a tokenizer. Then, those numbers go through the model, which outputs logits. Finally, the post-processing steps. ये लॉगिट्स क्या होते हैं? Logits is an overloaded term which can mean many different things. In math, logit is a function that maps probabilities to R minus infinity to infinity. Probability of 0.5 corresponds to a logit of 0. Negative logit corresponds to a probability less than 0.5. Positive to 0 bigger than 0.5 in ml it can be. अच्छा ठीक, मेरे ख्याल प्रोबेबिलिटीज होती हैं लॉगिट्स। Transform those logits into labels and score. Let's look in detail at those three steps and how to replicate them using the transformers library, beginning with the first stage, tokenization. The tokenization process has several steps. First, the text is split into small chunks called token. They can be words, part of words, or punctuation symbols. Then, the tokenizer will add some special tokens if the model expects them. Here, the model used expects a CLS token at the beginning and a SEP token at the end of the sentence to classify. Lastly, the tokenizer matches each token to its unique ID in the vocabulary of the pre-trained model. To load such a tokenizer, the Transformers library provides the AutoTokenizer API. The most important method of this class is from pre-trained.
which will download and cache the configuration and the vocabulary associated to a given checkpoint. नहीं यार, ये रशियन कहाँ से आ जाते हैं? अच्छा, ये इसका टोकनाइजर जो है आपको पहले क्या करता है, इसको ब्रेक करता है आपके जो भी इसके अंदर करेक्टर्स हैं, उसके बाद उसमें फ्रंट के ऊपर एक CLS और नेक्स्ट उसके ऊपर ये सेप। ये अभी उसने बताया था कि CLS क्या है। Small chunks called token. They can be words, part of words, or punctuation symbols. Then, the tokenizer will add some special tokens if the model expects them. Here, the model used expects a CLS token at the beginning and a SEP token at the end of the sentence to classify. Lastly, the tokenizer matches each token to its unique ID in the vocabulary of the pre-trained model. To load such a tokenizer, the Transformers library provides the Auto-Tokenizer API. The most important method of this class is from pre-trained, which will download and cache the configuration and the vocabulary associated to a given checkpoint. Here, the checkpoint used by default for the sentiment analysis pipeline is Distilbert-based uncased fine-tuned SS2 English, which is a bit of a mouthful. We instantiate the tokenizer associated with that checkpoint, then feed it the two sentences. Since those two sentences are not of the same size, we will need to pad the shortest one to be able to build an array. This is done by the tokenizer with the option padding equal true. With truncation equal true, we ensure that any sentence longer than the maximum the model can handle is truncated. Lastly, the return tensors option tells the tokenizer to return a PyTorch tensor. Looking at the result, we see we have a dictionary with two keys. Input IDs contains the IDs of both sentences with zeros where the padding is applied. The second key, attention mask, indicates where padding has been applied, so the model does not pay attention to it. This is all what is inside the tokenization step. Now let's have a look at the second step, the model. As for the tokenizer, there is an auto-model API with a from pre-trained method. It will download and cache the configuration of the model as well as the pre-trained weights. However, the auto-model API will only instantiate the body of the model. That is, the part of the model that is left once the pre-training head is removed. It will output a high-dimensional tensor that is a representation of the sentences passed, but which is not directly useful for a classification problem. Here, the tensor has two sentences, each of 16 tokens, and the last dimension is the hidden size of our model, 768. To get an output link to our classification problem, we need to use the AutoModel for sequence classification class. It works exactly as the AutoModel class, except that it will build a model with a classification head. There is one autoclass for each command NLP task in the Transformers library. Here, after giving our model the two sentences, we get a tensor of size 2 by 2, one result for each sentence and for each possible label. Those outputs are not probabilities yet. We can see they don't sum up to 1. This is because each model of the Transformers library returns logits. To make sense of those logits, we need to dig into the third and last step of the pipeline, post-processing. To convert logits into probabilities, we need to apply a softmax layer to them. As we can see, this transforms them into positive numbers that sum up to 1. The last step is to know which of those correspond to the positive or the negative label. This is given by the ID to label field of the model config. The first probabilities, index 0, correspond to the negative label, and the seconds, index 1, correspond to the positive label. This is how our classifier built with the pipeline function picked those labels and computed those scores. Now that you know how each step works, you can easily tweak them to your needs. इसमें सारा जो है ना, ये सारा फंक्शन असल में पाइपलाइन के अंदर ऑटोमेटेड हो रहा होता है। तो अगर आपने खुद से करना है तो उसने ये बताया कि ये कैसे होता है। आगे फर्दर मेरे ख्याल इसमें जो है ये दिखा रहा है ये कैसे हो रहा है। ये पाइपलाइन
जो है ये एक एक करके ये सारा दिखाएगा, ये जो ऊपर उसने बताया है वीडियो में वो एक एक करके दिखाएगा इधर सारा। This section, this is the first section where the content is slightly different depending on whether you use PyTorch or TensorFlow. Toggle is, हमने ये toggle किया हुआ है पहले ही, तो हमने कर लिया है. Let's start the complete example, taking a look at what happened behind the scene when we executed the following code in the chapter 1. हमने ये जब किया था ये सारा, तो असल में सारा पाइपलाइन का कमाल था. पाइपलाइन जो है वो सारा ये जो जितना प्रोसेस उन्होंने बताया ये सारा बिहाइंड द सीन कर रहा होता है और हमें बिल्कुल एंड रिजल्ट देता है पाइपलाइन. तो उसमें सारे स्टेप क्या इन्वॉल्व हैं, ये इन्वॉल्व हैं सारे स्टेप पाइपलाइन के अंदर, ये स्टेप्स हैं सारे. पहले आप रॉ टेक्स्ट फीड कर दें टोकनाइजर को, टोकनाइजर उसको इनपुट आईडीज में कन्वर्ट करता है, वेक्टराइज करता है, उसके बाद मॉडल में से पास करते हैं, मॉडल उसके लॉगिट्स बना देता है, लॉगिट्स से जो है फिर आप पोस्ट प्रोसेसिंग में पास करते हैं, वो आपकी प्रेडिक्शन दे देता है, वो उसको चेंज कर देता है प्रेडिक्शंस में पॉजिटिव या नेगेटिव. अब ये आपके सारे ये जो स्टेप्स हैं ये यहाँ पे हमें बताएगा कैसे कैसे हो रहे हैं. लाइक द अदर न्यूरल नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर मॉडल कैंट प्रोसेस रॉ टेक्स्ट डायरेक्टली. आपको पता है रॉ टेक्स्ट डायरेक्टली नहीं होता न्यूरल नेटवर्क में. सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ आवर पाइपलाइन इज टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू द नंबर्स that model can can make the sense of. To do this we use tokenizer, which you will be responsible for. क्या होगा जी, splitting the input to the words और सब words और symbols और punctuations. ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को स्प्लिट कर देगा, punctuations हैं, words हैं, ठीक है, सबको वो अलग अलग कर देगा. मैपिंग ईच टोकन टू एन इंटीजर, फिर हर एक जो भी वर्ड होगा उसको एक इंटीजर दे देगा, इंटीजर नंबर दे देगा. उसके बाद क्या करेगा, तीसरा काम, एडिंग द एडिशनल इनपुट्स दैट मे बी यूजफुल टू द मॉडल. तो आपके पास मॉडल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे वो शुरू में एक CLS लगा रहा था और आखिर में एक और वर्ड लगा रहा था, तो वो मॉडल को जो रिक्वायर्ड होता है उसके मुताबिक वो साथ में और वर्ड लगाता है. वो मुख्तलिफ मॉडल्स की शायद मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होगी. तो टोकनाइजर जो है ये काम कर रहा होता है 3. तो all this process needs to be done in exactly the same way as when the model was pre-trained. So we first need to download the information from the model hub. To do this we use the auto tokenizer class and its from pre-trained method. तो आपके पास ऑटो टोकनाइजर है और इसके अंदर आपके ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड, तो ये आपका एक मेथड है. तो हम क्या करते हैं कि वो कहता है कि आपने किसी मॉडल को अगर प्री ट्रेन मॉडल को यूज़ करना है ना, तो सारा के सारा जो प्रोसेस जो उसको ट्रेनिंग के दौरान उसके साथ किया गया था, जैसे हम टोकनाइज करते हैं, फिर हम वेक्टराइज करते हैं, फिर हम इस तरह जो जो भी स्टेप करते हैं, मैपिंग करते हैं, तो वो वाले सारे स्टेप आपके नए टेक्स्ट के साथ वो स्टेप बाय स्टेप होने हैं. तो कहते हैं कि वो जो है वो हम कैसे देख पाएंगे, वो हम देख पाएंगे इस क्लास से, ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड. तो आपके पास ये जो है, using the checkpoint name of our model it will automatically fetch the data associated with the model tokenizer and cache it, so it's only downloaded the first time you run the code below. तो आप जब ये करेंगे तो ये आपका चेक पॉइंट डाउनलोड हो जाएगा. ठीक है, चेक पॉइंट डाउनलोड हो जाएगा जब आप एक दफ़ा चलाएंगे कमांड, मतलब दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं है. तो ये आपके पास हो गया, ये आपका चेक पॉइंट है. डिस्टिलबर्ड बेस अनकेस्ड, ये आपका जो है मॉडल का नाम है मेरे ख्याल में. तो since default checkpoint of the sentiment analysis pipeline is this, सेंटिमेंट एनालिसिस का जो चेक पॉइंट है उसका नाम ये है, तो आपने वो इसमें यहाँ पे दे दिया.
और टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्रीप्रिंट आ गया, आपके पास चेक पॉइंट यहाँ पे डाल दिया. once we have tokenizer we can directly pass our sentence to it. अब हमारे पास टोकनाइजर आ गया, अब हम अपने सेंटेंस इसमें डाल देंगे, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये रॉ इनपुट्स, और आपने टोकनाइजर में या इस टोकनाइजर के इंस्टेंस के अंदर से आपने अपना ये रॉ इनपुट पास कर दी. ठीक है, तो ये एक्चुअली डिटेल्ड हो रही है ना डिस्कशन के पाइपलाइन में. बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है, उसकी वजह यह है कि अगर आपने अपना कोई मॉडल तरतीब देना है, अपने मॉडल को आपने कुछ डिज़ाइन करना है या कुछ उसमें से चेंजेस करनी है, तो आपको पता हो कि जी ये पाइपलाइन में क्या स्टेप हो रहे हैं, मुझे कहाँ चेंज करनी है. ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा है ये डिटेल्स. तो once we have tokenizer we can directly pass our sentence to it and we will get back the dictionary that is ready to feed to our model. तो हमने यहाँ पे आपके डिक्शनरी मिल जाएगी इन वर्ड्स की, उसकी मैपिंग मिल जाएगी. तो ये देखें जैसे ये मैपिंग आई हुई है. अच्छा, तो इसमें क्या होगा का द we'll get back a dictionary that's ready to feed to our model. That's the only thing left to do is to convert the list of inputs IDs to tensors. अब इनपुट आईडीज जो हैं मेरे ख्याल में जो आपकी ये होंगी, ये आपकी इनपुट आईडीज है ना, तो उसको टेंसर्स में चेंज करना होगा. तो ये तो हमें इसने इसने जो है हमें क्या दे दिया, इसने हमें मतलब ये रिज़ल्ट दे दिया. ठीक है, ये वाला रिज़ल्ट, यानी कि उसको उसने टोकनाइज कर दिया, हर वर्ड को एक टोकन दे दिया. ठीक है, लेकिन ये आपको पता है काफ़ी नहीं, क्योंकि हम आपके जो है ना वो टेंसर्स मतलब इनपुट होते हैं उसमें आपके मॉडल में, तो इसके टेंसर्स बनाएगा अभी. तो you can use transformers without having to worry about which ML framework is used as a backend. अच्छा, it might be PyTorch, TensorFlow, Flex, or some other models. However, transformer model only accept tensors as input. If this is your first time hearing about tensors, you can think of a NumPy array instead. A NumPy array can be scalar 0D, 1D, 2D, ये तो हमने पढ़े हुए हैं सारे, or have more dimensions. It's effectively a tensor. Other machine learning frameworks tensors behave similarly and are usually as simple to instantiate as NumPy arrays. मतलब आपको बता रहे कि टेंसर्स जो हैं वो NumPy arrays ही होती हैं basically. To specify the types of tensor we want to get back PyTorch, TensorFlow, or plain NumPy. To specify the types of tensors we want to get back PyTorch, TensorFlow, और plain NumPy, we use the return tensor argument. तो आपके पास यहाँ रिटर्न टेंसर आर्ग्यूमेंट जो है आप जब देंगे, आपको वो आप यहाँ बताएंगे कि मुझे टेंसर फ्लो की अरे चाहिए या सिंपली नमपाई की अरे चाहिए या पाइटॉर्च की फॉर्म में चाहिए आउटपुट. तो फिर आप यहाँ पे TF लिखेंगे तो आपको टेंसर फ्लो की फॉर्म में आपको ये रिटर्न करेगा रिजल्ट. तो यहाँ पे आप जो लिखेंगे वो चीज़ आएगी. Don't worry about padding and truncation just yet. We will explain those later. The main things to remember here are you can pass one sentence or a list of sentences as well as specifying the type of tensor you want to get back. If no type is passed, you will get back a list of list as a result. अगर आप ये नहीं देते यहाँ पे, ये ख़त्म कर देते हैं, तो आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट मिलेगी जो कि मेरे ख्याल NumPy होगी शायद. Here is what result look like in a TensorFlow tensors. तो आपके पास यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो ये चीज़ आएगी. ठीक है, और तो ये आपके ये इनपुट जो
जी जी। पैडिंग और ट्रंकेशन इसने यूज की हुई है। ये यूज इसलिए की है क्योंकि अगर ऊपर हम अपने सेंटेंसेस की लेंथ देखें तो डिफरेंट लेंथ है। हाँ तो हाँ बिल्कुल। ठीक है, नीचे सेकंड देखें एरे में जहाँ पे ये टोकनाइज करता है, जी तो 102 के आगे ना इसने 00 कर दिया है, ताकि ये क्या कर रहा है कि मतलब उसकी पैडिंग को भी ठीक कर रहा है और हम जो बाकी सेंटेंस है उसे ट्रंकेट कर रहा है, ताकि हमारा जो सेंटेंस है उसकी लेंथ सेम हो जाए। बिल्कुल सही है ये। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मेरे ख्याल में हमने एम्बेडिंग में भी शायद ऐसे ही कुछ किया था, अगर आपको याद हो तो ये असल में वो इक्वल अरे में लेके आएगा, पैडिंग करता है ताकि आपके अरे की लेंथ बराबर हो जाए दोनों की। ठीक है, तो ये अटेंशन मास्क जो है ये थोड़ा सा बाद में देखते हैं, यहाँ पे लिखा होगा इसका। द आउटपुट इटसेल्फ इज अ डिक्शनरी कंटेनिंग टू कीज। आपके पास दो कीज हैं, इनपुट आईडीज हैं और अटेंशन मास्क हैं, दो कीज हैं और आपके उसके रेस्पेक्टिव जो हैं वो अरेज हैं। input IDs, attention mask. Input IDs contain two rows of integers, one each for each sentence, that are the unique identifiers of the tokens in each sentence. We will explain what the attention mask is later in this chapter. अटेंशन मास्क बाद में आएगा। अब ये अरे का तो आपको पता चल गया कि हर जो नंबर है वो एक एक वर्ड को असाइन किया गया है, एक टोकन है ये, हर वर्ड के रेस्पेक्टिव एक टोकन है। गोइंग थ्रू द मॉडल, अब आपके पास अगला जो स्टेप आया, पहला स्टेप हमने देख लिया, ये टोकनाइजर हमने देख लिया। ठीक, अब अगला स्टेप आया मॉडल का। वी कैन डाउनलोड आवर प्री-ट्रेन्ड मॉडल द सेम वे वी डिड विद आवर टोकनाइजर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड्स TF auto model class which also has a for from pre-trained model method। तो आपके फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट TF ऑटो मॉडल, असल में बेसिकली बिहाइंड द सीन आपकी जो पाइपलाइन है वो सारा कुछ ये कर रही होती है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। आपको जो API है, पाइपलाइन का API, वो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, हर चीज़ आपके लिए खुद ब खुद कर रहा होता है बिहाइंड द सीन। तो यहाँ पे आपके चेक पॉइंट बनाया, चेक पॉइंट पे वही आपका इंग्लिश वो चेक पॉइंट है। ये चेक पॉइंट कहाँ से आ रहा है दरअसल? ये चेक पॉइंट उसने यहाँ बताया था कि ये चेक पॉइंट जो है आपका सेंटिमेंट एनालिसिस की जो सर भी वो। ये नीचे ये, हाँ बस यहीं पे बेसिकली उसने एक नेम बना लिया है वेरिएबल चेक पॉइंट्स के नेम से। हो क्या रहा है कि वो इसमें मॉडल अपना ला रहा है जो जिस मॉडल को हम प्री ट्रेन करेंगे या मतलब फाइन ट्यून करेंगे, असल में यही सीन है सर। ये डिजिटल बर्ड जो बेस केस फाइन ट्यून SS2 ये एक मॉडल है, ठीक है, जिसे वो फाइन ट्यून कर रहा है, जिसे टोकनाइजर के साथ जोड़ा है। ठीक, तो वो जो है सेंटिमेंट एनालिसिस कह रहे हैं ना, सिंस द डिफॉल्ट चेक पॉइंट ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस पाइपलाइन इज दिस वन। तो वो ये रहा, ये है ना। This model is a fine-tuned checkpoint of uncased। ये फाइन ट्यून चेक पॉइंट है ये वाला सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए। तो ये जो जैसे ये कि ये है आपका नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपका सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो चेक पॉइंट है, मतलब चेक पॉइंट एक मॉडल है जो कि मेरे ख्याल में क्या करता है, this model is a fine-tuned checkpoint fine-tuned on SST2। this model reaches an accuracy of 91.3% on the dev set। for comparison bird based uncased version reaches an accuracy of 92.7%। तो ये आपका कोई डिफॉल्ट चेक पॉइंट है जो कि ये यूज होना है सर आपके ये सेंटिमेंट केस में। असल में ये मॉडल जो है बेसिकली चेक पॉइंट उन्होंने सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया
ठीक है, एक मॉडल को जाहिर हम जरूरी नहीं, हम यहाँ पे चेक पॉइंट्स नहीं लिख सकते ना, हम सिंपल डिजिटल बर्ड ये जो नीचे मॉडल का नेम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, इस मॉडल को उठा के हम अपनी थर्ड लाइन जो है ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड जो पैरेंथेसिस के अंदर चेक पॉइंट था वहां पे अपने मॉडल का नेम लिखते, सिंपल, कोई मसला नहीं, चेक पॉइंट्स को बेशक रिमूव भी कर दे तो ये हमारा परफेक्ट वर्क करेगा। असल यहाँ पे लिख दें ये वाला, ये चीज। हाँ जी, जी हाँ लिख दे, ये परफेक्ट वर्क करेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो फिर और तो चेक, ये क्यों ना अच्छा ये क्यों जी ना इसको साथ साथ कोलैब पे कर लें, इसको कोलैब पे कर लें इसको साथ साथ। जी हाँ जी जरूर। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसने फिर टोकनाइजर का वेरिएबल यूज क्यों किया, टोकनाइजर कह रहा, सॉरी वो चेक पॉइंट्स क्या का नहीं, सर, चेक पॉइंट का। जी जी। सर ये जब हम आगे जाके करेंगे ना, असल में होता ये है कि प्रोग्रामिंग में अगर आप देखा जाए तो इस तरह से ना मेंशंस करना वेरिएबल्स में, ये कह लें कि एक कह लें कोड की खूबसूरती है। असल में जी एक चेक पॉइंट उसने बना दिया कि ये चेक पॉइंट है जहां से हमारा जो मॉडल है वो आ रहा है, ठीक है। अब सही है। इस चेक पॉइंट्स में हम डिफरेंट चेंजिंग्स भी कर सकते हैं, हम्म। ठीक है, मतलब अगर उसने आप गुड इस, प्रैक्टिस के तौर पे उसको किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि ना अगर हम देखें कोई वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम कोई इंटीजर टाइप वैल्यूज रखना चाहते हैं, तो वो कहता है कि पाइथन में वेरिएबल रूल को अगर फॉलो करें तो वो कहता है कि भाई वेरिएबल्स का जो इंटीजर वेरिएबल्स है ना वो आप कैपिटल लेटर में रखो, ना कि स्मॉल में, ठीक है। तो इसी तरह से इसने एक चेक पॉइंट वेरिएबल ले लिया है, उसमें सिर्फ उसे वो कुछ नहीं कर रहा, अपना एक जो फाइन ट्यून जिस मॉडल को करना है उस मॉडल को पास कर रहा है बस, ताकि गेन भी यूज करना पड़े, वो बस वेरिएबल पास कर देगा वहां पे, बार बार नहीं यूज। वेरिएबल पास कर लेगा। अगर फॉर एग्जांपल हमें नीचे भी कहीं ले जाके यूज करना पड़े तो वहां पे वो चेक पॉइंट लिख देगा। सही है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा अच्छा, ये जो है हम इधर रन कर रहे हैं। तो ये तो पाइपलाइन से इसने किया ना, तो ये डिफॉल्ट टू डिस्ट डिसल्बर बेस्ड वही उसी पे चला गया ना डिफॉल्ट, तो ये वही डिफॉल्ट पे चला जाता है खुद ब खुद ही। सेंटीमेंट एनालिसिस, जब सेंटीमेंट एनालिसिस की बात करेंगे तो उसका डिफॉल्ट ये है मॉडल। जी हाँ जी हाँ, डिफॉल्ट ये है। अगर हम इसे नहीं यूज करना चाह रहे तो नीचे जैसा वो चेक पॉइंट में बता रहा है, यहाँ पे हम जरूरी तो नहीं कि हम डिजिटल बर्ड ये जो अनकेस मॉडल है ये वाला लगाएं, हमें क्या पता हमें कोई और मॉडल यूज करना पड़े, तो फिर हम यहाँ पे उसका नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक समझ गया। तो यहाँ पे अगर मैंने इसके हटा दिया है, बाकी नाम सिर्फ ये रखा है, तो क्या करते हैं वो उसको disabled is not a local folder and is not a valid model identifier। ये तो पूरा मॉडल, नाम नहीं 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 नहीं, असल में होगा ये कि पहले हमें देखना होगा कि सिंपल डिजिटल बर्ड मॉडल है भी इसके मॉडल हब में कि नहीं है वह, क्योंकि नहीं होगा क्योंकि ये मॉडल नहीं पड़ा हुआ डिजिटल बर्ड, वो सिंपल डिजिटल बर्ड। वो जो है ना, मैं आपको दिखा, यहाँ पे लिखा हो ना, ये देखें ये एरर आ रहा है 404 क्लाइंट एरर रिपोजिटरी नॉट फाउंड। जी हाँ, यहाँ मतलब पे मॉडल, ये रेपो मतलब मॉडल है रेपो ही नहीं डिजिटल बर्ड के नेम से। वो पूरा है, यानी कि ये पूरा एक मॉडल का नाम पूरा है, है, वो देना ठीक। पड़ेगा। हम्म, तो वैसे इसे सिंपल यहाँ से उठा के वो चेक पॉइंट में रखे ना जरा, देखते हैं वो चलता भी है कि नहीं चलता। ये पूरा चलेगा ना, ये तो एक वेरिएबल है ना बस, हाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास अब जो उसने ऊपर किया है ये पाइपलाइन के जरिए, अब वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से शुरू करेगा।
और हर एक को वो आप दिखाएगा कि इसके अंदर हो क्या रहा था ना। तो यहाँ आपके पास ये टोकनाइजर चल गया इसका। के बाद आपके पास टोकनाइजर के अंदर से हम ये पास कराएंगे रॉ इनपुट। तो आपके पास इसकी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये जरा तो इसकी जरा ट्रंकेशन और पैडिंग को रिमूव करिएगा ना, जरा रन कीजिएगा, देखिए एरर देता है ये क्या करता है ये, मैंने भी चेक नहीं किया है। अच्छा, पैडिंग को जी हाँ। फॉल्स कर दे। वो अनइक्वल आएंगे लेंथ उसकी। जी हाँ। ट्रंकेशन को भी फॉल्स कर दें। जी जी। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इस वक्त ये इस तरह से है, और अब रिजल्टिंग क्या आता है। अनएबल टू क्रिएट टेंसर, यू शुड प्रोबेबली एक्टिवेट ट्रंकेशन और वाई पैडिंग ट्रू। एक को ट्रू रखना पड़ेगा। चलिए एक को रख के देखे जरा। और वो बराबर कर देगा ना दोनों को। नहीं हुआ। दोनों करने पड़ेंगे। पैडिंग अगर पैडिंग अगर ट्रंकेशन। अगर ऐसा करें कि वो ऊपर से सेकंड सेंटेंस जो है उससे जरा कमेंट कर दें और इसे फॉल्स फॉल्स के साथ ही रन करें। वो कोमा भी हटा दीजिएगा ऊपर लाइफ के आगे जो लिखा हुआ है। वो तो दे दिया उसने। वो डिफरेंट, जब डिफरेंस आता है ना लेंथ का, तो फिर वहां पे आता है। जी हाँ बिल्कुल। चलो, तो ये आ रहा है, ठीक है। और फर्दर आगे देखते हैं। टाइम 6 मिनट रह गए हैं। और द आउटपुट itself, अब आपके पास जो आउटपुट आई है, ठीक है। तो ये आपके पास गोइंग थ्रू द मॉडल, अब मॉडल आया। अब मॉडल आपके पास, वी कैन डाउनलोड आवर प्री ट्रेन मॉडल द सेम वे वी डिड विद आवर टोकनाइजर ट्रांसफॉर्मर void and tf auto model class which also has a from pre trained method। तो फ्रॉम प्री ट्रेंड हमने यहाँ भी लगाया है, यहाँ लगाया है, हाँ लगाया ना ये, ठीक है। यहाँ भी लगाया है, और यहाँ भी लगाया है, ठीक है। तो वही चेक पॉइंट उसी मॉडल का चेक पॉइंट है। यहाँ से मैं इसको गुजारा, इसके बाद अब आपके पास जो है, असल में TF ऑटो मॉडल जो है ना, ये काम कर रहा है सारा बिहाइंड द सीन। मतलब वो सारा कुछ उसके वो डाउनलोड करेगा चेक पॉइंट वगैरह, और उसको फिर इसका इंस्टेंस बना देगा, मॉडल का इंस्टेंस एक। In this code snippet, we have downloaded the same checkpoint we used in our pipeline before. It should actually have been cached already. अच्छा, वो कैश हुआ है पहले ही, and instantiated with a model with it। अब हाँ के पहले ही वो, मतलब हमारा तो ऊपर पहले आया हुआ है ना इसमें, ये वाला यहाँ से, ये चेक पॉइंट। तो अब वो दोबारा से डाउनलोड नहीं करेगा इस केस में। तो this architecture contains only the base transformer module, given some input. It outputs what we will call hidden states, also known as features. For each model input, we will retrieve a high dimensional vector representation representing the contextual understanding of that input by the transformer model। तो हमारे पास जो ये आउटपुट देगा, ये एक फीचर वेक्टर्स होंगे, ठीक है। और वो फीचर वेक्टर हाई डायमेंशनल स्पेस में वो फीचर वेक्टर होंगे, जो कि आपके ट्रांसफर मॉडल ने आपको और जो किया कि आपके ट्रांसफर मॉडल ने आपको दिए हैं।
इफ इट डज नॉट मेक सेंस डोंट वरी अबाउट इट, वी विल एक्सप्लेन लेटर। हर चीज़ को एक्सप्लेन लेटर में करेगा ये। अच्छा जी, और उसके बाद आपके पास आ गया while these hidden states can be useful on their own। ये आपकी हिडन स्टेट्स कौन सी हैं? ये हैं जो कि आपका इस मॉडल की मतलब हमारे पास क्या आएगा, बेस ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल गिवन सम इनपुट्स इट आउटपुट्स व्हाट वी विल कॉल हिडन स्टेट। हम इसको अगर कोई इनपुट देंगे तो हमें वो आउटपुट्स देगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि हिडन स्टेट आउटपुट्स हैं, और या उनको हम फीचर्स भी कहते हैं। ये फीचर्स जो हैं आपके फ्रॉम ईच मॉडल इनपुट वी विल रिट्रीव हाई डायमेंशनल वेक्टर रिप्रेजेंट। ये आपके जो फीचर्स हैं ये एक हाई डायमेंशनल वेक्टर्स की सूरत में आएंगे आपके पास। While these hidden states can be useful on their own, they are usually input to another part of the model known as the head। तो आपके पास जो मॉडल की आउटपुट आएंगी उसको आपने इनपुट करना है मॉडल के हेड में। In chapter 1, the different tasks could have been performed with the same architecture, but each of these tasks will have a different head associated with it। ठीक है, आप डिफरेंट हेड्स के साथ डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको ज़रा रन करके देखते हैं। यहाँ पे ये तो खैर मॉडल ही डिफाइन किया, तो अच्छा ये डाउनलोड कर रहा है दोबारा, वो तो कह रहा था कैश्ड होगा, यहाँ पे भी उसने डाउनलोड किया था। हो गया, ठीक है। अच्छा यार, आज के लिए यहाँ पे बस करते हैं और कल फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेरे ना चार्जिंग ख़त्म हो गई है।